اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ وہ ہر قسم کی بیماری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہترین وظیفہ اور عمل ہوگا، اور ایسی بیماری جس سے بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، حکیم اور رتبہ عاجز آ چکے ہوں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو بظاہر لا علاج ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر اس بیماری کا علاج آپ لوگوں کو آج بیان کروں گا جس کو ہم لوگ لا علاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح خود بھی عمل کیجئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا مکمل طریقہ کار بتائیے گا، کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جس طرح کی بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ہے، اور شفا بھی یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، خود میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن مجید کے اندر شفا ہے اور اللہ کی رحمت۔ تو یہ وظیفہ اس لحاظ سے بہت ہی مجرب ہے۔ سب سے پہلی بات، ایک تو بارش کا پانی، دوسرا قرآن مجید کی آیات، اور سب سے بڑی بات کہ جس کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بارش کا پانی اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس طرح بارش کا ذکر ہوا شاید کوئی اور نعمت کا اس قدر ذکر نہ ہوا ہو۔ اس کی وجہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بارشیں اللہ تعالیٰ آسمان سے برسانا بند کر دے تو ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں ذائقے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بارش برستی تھی تو آپ اپنے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے اور بارش کے پانی کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پانی آپ کے جسم اطہر پر گرتا تھا، تو آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے پانی کو اتنا بابرکت سمجھتے تھے، اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، قرآن نے بارش کے پانی کو مبارک کہا ہے اور برکت والا کہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ہم سارے لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو ہماری کسی کے بھی ذہن میں یہ نہیں ہوتا، اور یہاں پر میں بڑی خوبصورت حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے لگا ہوں، جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ ہر بارش کے پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے۔ تو فرشتے کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیوں کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ گویا کہ اس سے ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ ایک قطرہ جب نیچے آتا ہے تو اس کے ساتھ رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ جو دعا کریں گے وہ مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بارش کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے در پہ جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کرے گا۔ تو ایک تو میں یہاں پر آپ کو بیان کرتا ہوں چھوٹی سی ایک دعا، جب بھی بارش برس رہی ہو تو ہر بھائی ہر بہن، چاہے کوئی بیمار ہو چاہے کوئی تندرست ہو، یا مرد ہے یا عورت ہے،
तो वो ये दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। अब ये दुआ बहुत मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। ऐ अल्लाह इस बारिश के पानी को मेरे लिए नफा बना दे। तो कोशिश करें हर मेरा भाई बहन इस दुआ को लाजमी पढ़े, एक बार तो जरूर पढ़े, लेकिन अगर बार बार भी पढ़ लिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह ताला ने बारिश के पानी में बहुत तासीर रखी है बीमारियों से शिफा के लिए, और बारिश के पानी को पीना भी और नहाना भी बहुत बेहतरीन है। बारिश का पानी जिस्म से अमराज को निकाल देता है। तो मेरे अजीजों, जो भी पानी है सारे का सारा अच्छा है, लेकिन वो पानी जो आसमानों से नाजिल हुआ और कुरान ने उसे मुबारक कहा और बरकत वाला कहा, और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारिश के पानी को अपने जिस्म के साथ मस किया, तो देखिए कि उस पानी की कितनी तासीर होगी, और फिर बारिश को नफे वाला बनाया गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाते हैं और आप खुतबा दे रहे थे। हजरत इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक शख्स दाखिल हुआ और वो हलकना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। तो सहाबा इकराम भी मुतवज्जे हुए उस बंदे की तरफ। उस वक्त मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत कच्ची थी और पानी टपकता था, और पहले जो बारिशें होती थी वो बहुत तवील होती थी, लगातार 8-8 10 दिन भी बारिशें होती रहती थी। तो उस वक्त भी मदीना शरीफ में यही सिस्टम चल रहा था कि पूरा हफ्ता गुजर गया था और बारिशें चल रही थी। तो उससे पहले वही आदमी, उससे पहले जब कहत का आलम था और वही आदमी हाजिर हुआ था और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी तरह हाजिर हुआ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत कच्ची थी और उसमें से धूप अंदर आ रही थी, और उसने आके अर्ज पेश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो गए। तो आपने कहा क्यों हलाक हुए? तो वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही और कहत पड़ चुका है, हमारी फसलें कोई नहीं, जानवर मर रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं? तो वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बारिश दे। तो देखिए कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ की। हज़रत इन्स इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने जैसे ही हाथ उठाए और अभी आप दुआ कर ही रहे थे कि जो धूप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत से अंदर आ रही थी, तो एकदम वो धूप मदम हो गई, और अभी आपके हाथ यूं चेहरे पर नहीं गए थे कि बारिश बरसना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। ये देखिए कि जुमे का दिन और मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में। तो सुभान अल्लाह, इतनी सख्त बारिश हुई कि सहाबा किराम फरमाते हैं और 7 दिन गुजर गए, बारिश लगातार हो रही है। और अगले जुमे को वही आदमी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसी वक्त वो हाजिर हुआ। जब खुतबा देने लगे तो उसने फिर वही जुमला कहते हुए दाखिल हुआ, हम हलाक हो गए, हम तबाह हो गए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू से कहा, पिछले जुमे तुमने कहा था। तो वो बद्दू कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बारिश होती नहीं थी और अब रुकती नहीं, तो आपने फरमाया मैं क्या करूं? तो वो बद्दू कहने लगा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि बारिश थम जाए। तो आपने जैसे हाथ उठाने लगे तो रिवायत में यह भी मिलता है कि वहां पर यहूदी भी मौजूद थे, और यहूदियों ने मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे कि वो ये दुआ ना करें कि बारिश थम जाए। तो मुसलमानों ने कहा क्यों? तो यहूदी कहने लगे, अगर इन्होंने कह दिया बारिश रुक जा और अल्लाह ताला बारिश रोक देगा तो क़यामत तक मदीने में बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वो हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये यहूदियों को भी यकीन था कि जो लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतर से जारी हो गया वो लफ्ज कानून बन जाएगा। तो फिर सहाबा ने कहा क्या कहे? तो यहूदी कहने लगे कि आप कहे कि बारिश हो, साइडों पर हो, हम पर ना हो।
تو इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो बारिश साइडों पे होती रही, यानी पहाड़ों पे, और मदीना शहर से उस वक्त बारिश हट गई। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, छोटा सा ये वाकया बताने का मकसद ये था कि बारिश हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो इस आज वाले अमल से ऐसे मरीज जो बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और खतरनाक और मोहलिक बीमारियों में मुब्तला है, और बहुत सारे लोग अपने भी और बेगाने भी आजिज आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग उन बीमार होने वालों की वजह से परेशान है, और बहुत सारा माल और दौलत खर्च कर दिया, लेकिन सेहत नहीं मिल रही, यानी अल्लाह की तरफ से शिफा नहीं मिल रही। तो ऐसे ही मरीजों के लिए एक लाजवाब तोहफा है। तोहफा इसलिए कि ये वाला अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से जारी हुआ, और रिवायत करने वाले भी वो हस्ती है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और इसमें जो कुछ भी है वो सारा अल्लाह का कलाम है, जो हमने पानी पे पढ़ना है और पढ़ के हमने उसे पीना है। तो चलते हैं अपने आज के अमल की तरफ। बारिश का पानी ले लें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। बोतल में ले लें, किसी बड़ी बाल्टी में ले लें, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि आप उस बर्तन में पानी लें जिसमें आप बाद में उसे महफूज कर सके। तो बारिश का पानी ले लें, वजू करके साफ सुथरी जगह पर बैठ जाएं, और अव्वल आखिर दूध पाक लाजमी पढ़ लिया करें। दूध पाक पढ़ने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि वो हर चीज के असर को बढ़ा देता है। जिस तरह बहुत सारी दुआओं में एंटीबायोटिक होता है या कोई ऐसी चीज होती है जो दवाई के असर को तेज करती है, तो इसी तरह दुरूद पाक है कि ये हर काम के असर को तेज करता है। तो दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद 70 बार सूरह फातिहा पढ़े, और उसके बाद 70 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है। जो कुछ भी आपने पढ़ना है, यानी पहले आपने सूरह फातिहा पढ़ी 70 बार, आपने पानी पे दम करना है। उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ी 70 बार, और आपने फिर पानी पे दम करना है। और फिर आपने आखिरी दोनों कुल भी 70 बार पढ़कर पानी पे दम करने हैं। फिर मैं एक बार बयान कर देता हूँ, यानी पहले आपने सूरह फातिहा पढ़ी 70 बार और पानी पे दम किया। उसके बाद आपने तीनों कुल पढ़ने हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये तीनों भी आपने 70 बार पढ़ के आपने पानी पे दम करना है। तो इसके बारे में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास तशरीफ लाए और खबर दी कि जो शख्स ये पानी 7 रोज तक मतवातर पिएगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से हर बीमारी दूर कर देंगे और इसे सेहत और आफियत फरमाएंगे, और इसके गोश्त, पोश्त और हड्डियों से तमाम बीमारियों को निकाल देंगे। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा और खूबसूरत और प्यारा अमल है। और इसमें जो सूरह फातिहा उसके बारे में तो वैसे भी है, सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत अमल है। तो हर मेरा भाई बहन कोशिश करे कि बारिश का पानी लिए और तो इसको पढ़े, पढ़ के दम करे, और कोशिश करे कि बाकी भी सब घर वालों को पिलाएं। तो यकीन कीजिए ये पानी इतना जबरदस्त है कि इससे आपके घरों में लड़ाई झगड़े भी खत्म होंगे, नफरतें भी खत्म होंगी, बीमारियों से तो जान छूटेगी ही। लेकिन इसके अलावा भी इस पानी के यानी अल्लाह के कलाम के पड़े हुए पानी के बहुत फायदे हैं, और कोशिश करें कि इस पानी को अपने घरों में छिड़कें भी। तो यकीन कीजिएगा कि अल्लाह की रहमत से आपके घरों में मोहब्बत भी होगी, बरकत भी होगी, लड़ाई झगड़ों से निजात भी होगी, और आपके मालो दौलत में इजाफा भी होगा। जिस घर में प्यार मोहब्बत होगी, यकीनन वहाँ अल्लाह की रहमतें भी होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सभी भाइयों सभी बहनों को हर बीमारी से शिफाया भी अता फरमाए, और हर घर में प्यार मोहब्बत और सलूक रखे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।